हेलो एवरीवन, द जीनियस ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। So today's session is especially for class 10th students, right? So in this session we are going to learn about the polynomials, right? What is polynomials? How can we identify the polynomials? And we are going to solve some questions based on this chapter, right? So again, let's start the polynomial. So before starting directly the polynomial, let's discuss some terms related to this chapter, right? So we are going to discuss some terms here. So the first term which I'm going to discuss today is algebraic expression, right? Algebraic expression. अब algebraic expression क्या होता है, right? Anything, कुछ भी लिखा हुआ, just let me take example. So let me take example, ax square plus by minus c, right? So this is nothing but the algebraic expression. Why? Again, you can see यहाँ पे कौन से term. You can see here a and b. So what is a and b here? So we all know a and b are coefficients. A and b are coefficients, है ना? A और b क्या है यहाँ पे? Coefficients, right? Again, what is c here? So c is constant. C is constant. Again, if you talk about this x and y, so यहाँ पे x and y क्या है? So x and y is, you can see this x and y are variables, है ना? x y क्या है? Variables है. Okay, and again you can have some more terms here. So again you can see this is plus and minus. So what are the plus and minus? So these are operators. We can also say mathematical operators, right? Plus, minus, multiplication, anything possible, right? And again, one more thing you can see here, this 2 and 1, right? So this 2 and 1 is nothing but this is known as exponent, right? Let me clear this. अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ x raised to the power n, so we all know this x is basically known as base and this n is known as exponent, है ना? This x is base and this n is exponent. So here you can see exponent is 2 and 1 in this case, right? So ये total जो लिखा हुआ है इसमें क्या क्या है? Coefficients है, variables है, constant है, exponents and some operators are there. So इसको हम लोग as a whole क्या बोलेंगे? So this is known as algebraic expression, right? But हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? Polynomial. So polynomial किसको कहेंगे? So very simple. Polynomial क्या होता है? So polynomial is a special kind. Polynomial is the special kind of expression. So we can see what is polynomial? So a special kind of expression. Expression is polynomial, right? अब special kind क्या है, right? So there will be some criteria. So कुछ criteria होगा. Let's discuss. So there are condition for polynomial, right? Condition for polynomial यानी कोई भी algebraic expression है वो polynomial कब होगा? There are some conditions here. So first, अगर हम प्रीवियस स्लाइड में देखें तो प्रीवियस स्लाइड में क्या क्या था हमारे पास? कोफिशिएंट था, वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट एंड ऑपरेटर्स. सो सबसे पहला चीज हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे? कोफिशिएंट्स आ रहा है, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज कोफिशिएंट्स, राइट? सो पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स क्या होना चाहिए? ऑलवेज रियल नंबर होना चाहिए, ऑलवेज रियल नंबर. और हम रियल नंबर जानते हैं क्या होता है? रियल नंबर कैन बी लाइक प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस √2, एनीथिंग, है ना? ये सारा क्या होता है? रियल नंबर. तो क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट ऑलवेज रियल नंबर होना चाहिए, राइट? कोफिशिएंट शुड ऑलवेज बी अ रियल नंबर. एंड द सेकंड कंडीशन क्या है? यू कैन सी वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स में क्या है? अगेन नो रिस्ट्रिक्शंस. वेरिएबल में क्या है यहाँ पे? नो रिस्ट्रिक्शंस. नो रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है? यू कैन टेक n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यू कैन टेक n number of
वेरिएबल्स, यानी पॉलिनोमियल में कितना भी वेरिएबल हो सकता है, लाइक एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, कितना भी वेरिएबल आप ले सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वेरिएबल पे, राइट। एंड यस द थर्ड वन इज एक्सपोनेंट, राइट। थर्ड वन इज एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट आप समझ लिया था हमने कि एक्सपोनेंट क्या होता है। सो एक्सपोनेंट यहाँ पे एक कंडीशन है, राइट। एक्सपोनेंट शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर, राइट। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए। एंड वी ऑल नो होल नंबर क्या होता है, सो इट इज 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो ये सारे कितने हो गए, होल नंबर हो गए, है ना। तो दीज आर थ्री कंडीशन। पहला कोफिशिएंट ऑलवेज रियल नंबर होना चाहिए, वेरिएबल कितना भी ले सकते हो आप, एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। अगर ओवरऑल देखोगे ना तो आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना है कि एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए, राइट। लेट्स हैव सम एग्जांपल। ओके, सो एग्जांपल 1, 5। क्या ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, क्योंकि एक्स रेज टू द पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो ये पॉलिनोमियल है, दिस इज द पॉलिनोमियल, है ना, ये पॉलिनोमियल है। अब सेकंड बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9y माइनस 3। क्या ये पॉलिनोमियल है, सो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि आप देखो सारे जो कोफिशिएंट यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट्स है 3 5 9 सारे क्या है, रियल नंबर है। और ऑपरेटर्स तो हैं। उसके बाद आप देखो वेरिएबल क्या है, x एंड y, तो 2 वेरिएबल्स आ गया। इसमें कितना वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है ना। और सबसे जरूरी चीज देखोगे तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। सो अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल, है ना, ये भी पॉलिनोमियल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, √3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1/9। क्या ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल होगा। क्यों पॉलिनोमियल होगा, फिर से डिस्कस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये क्या है, √3। सो √3 से कोई दिक्कत नहीं है, √3 इरेशनल नंबर है बट रियल नंबर है ना। तो कोफिशिएंट यहाँ पे सारा रियल नंबर है, ओके। और एक्सपोनेंट की बात करो तो ये भी 2 और इसमें 1, तो यहाँ पे भी क्या है, ये होल नंबर है, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल होगा, ओके। नाउ अगेन लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल, x टू द पावर 2 प्लस x 1/2 माइनस 9। क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं होगा, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, बट यहाँ पे क्या है, इस वाले एक्सप्रेशन में 1/2 है, और ये नॉट अ होल नंबर, है ना, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं। सो यस, सो दिस इज नाउ x to the power 5 plus x to the power 3 divided by x to the power 6 plus 5। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है क्या, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फिर से देखते हैं। हमें एक चीज प्रॉपर्टी पता है कि अगर बेस सेम होता हो, जैसे a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n, इसका वैल्यू क्या होता है, a to the power m minus n, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x टू द पावर 5 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3 माइनस 6, सो -3 एंड प्लस 5। तो यहाँ पे देखो -3 आ गया एक्सपोनेंट, और -3 क्या होता है, होल नंबर नहीं होता है, सो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अंडरस्टूड ना। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। ओके, सो नाउ let's discuss the another term. So another term is again classification of polynomial. Classification of polynomial, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को दो क्लास में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। सो जो पहला क्लासिफिकेशन होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। एंड द सेकेंड होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब ये डिग्री क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, राइट। सो अगेन
सबको अलग अलग से समझते हैं। सो नंबर ऑफ टर्म्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स पे कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ टर्म्स में इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट थिंग हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज बेसिकली वी कैन से फर्स्ट इज मोनोमियल, राइट। मोनोमियल क्या होता है, मोनो मतलब एक, है ना। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, वन टर्म, ओनली वन टर्म, और ये भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। जैसे 3x, 3x में क्या केवल एक ही टर्म है, लाइक 9x², इसमें भी क्या है, एक ही टर्म है, ठीक है। और अगेन आप जीरो अगर लेते हो तो जीरो को आप मोनोमियल नहीं कह सकते हो, कि हमने क्या बताया कि नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। यानी नंबर ऑफ टर्म एक होगा, वो भी नॉन जीरो होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल होगा। फिर यहाँ पे जीरो मोनोमियल नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो 3xy, सो ये भी क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि एक ही टर्म, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोनोमियल। एंड अगेन सेकेंड यू कैन से बाइनोमियल, है ना। सेकेंड क्या हो सकता है, बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब अगेन यहाँ पे क्या होगा, टू टर्म्स, जिसमें क्या हो, टू टर्म्स, बट क्या होना चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, है ना। दोनों टर्म क्या होने चाहिए, डिफरेंट, लाइक 3x² + 5। सो 3x + 5 क्या है यहाँ पे, बाइनोमियल है, क्योंकि एक टर्म ये और एक टर्म ये, लाइक 9x² - 3। सो यहाँ पे भी क्या है, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो बाइनोमियल होगा। बट क्या 5x - 3x इसको बाइनोमियल बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, क्योंकि 5x - 3x क्या है, दोनों एक ही जैसा टर्म है, और 5x - 3x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, राइट। सो 5x - 3x क्या हो जाएगा, 2x, और ये क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी मोनोमियल, राइट। सो ये हो गया मोनोमियल, राइट। अब थर्ड डिस्कस करते हैं, ट्राइनोमियल। अगेन आई होप अब आप समझ रहे होंगे, ट्राइनोमियल मतलब थ्री डिफरेंट टर्म, राइट। थ्री डिफरेंट टर्म्स होना चाहिए, डिफरेंट टर्म्स जरूरी है, राइट। अगेन लाइक 3x² + 5x एंड -9, यहाँ पे देखो 1 2 3, थ्री डिफरेंट टर्म्स है, सो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल होगा, क्लियर है, ओके। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 3x² - 9x + 2x एंड यस -5। अब बताओ ये क्या है, सो ये भी क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा। आपको देखने से फोर टर्म लग रहा होगा, बट ये दोनों टर्म सेम है, सो इसको लिख सकते हो 3x² -7x एंड -5। सो अगेन दिस इज द ट्राइनोमियल, क्लियर है ना, ट्राइनोमियल, ओके। एंड अगेन यू कैन हैव वन मोर, एक्चुअली आपको ट्राइनोमियल तक पढ़ना है, एक और हो सकता है क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, है ना। तो क्वाड्रिनोमियल क्या होता है, सिंपल, फोर डिफरेंट टर्म्स, फोर डिफरेंट टर्म्स, है ना। फोर डिफरेंट टर्म्स होगा, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 3x³ + 5x² + 9x - 5। इसमें देख लो आप, फोर डिफरेंट टर्म्स, 1 2 3 4, सो वी आर हैविंग फोर टर्म्स, सो दिस इज क्वाड्रिनोमियल, राइट। सो ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हाउ कैन वी क्लासिफाई, राइट। नाउ बेस्ड ऑन द डिग्री, सो लेट्स डिस्कस द सेकेंड थिंग, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब तो हमें ये सीखना होगा कि डिग्री होता क्या है, राइट। व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, लेट्स हैव वन एग्जांपल एक्चुअली, लेट मी राइट 4x³ + 3x² + 5x एंड -2, ठीक है ना। अब हर एक टर्म का अगर हम एक्सपोनेंट यहाँ पे लिखना चाहें, तो इस वाले टर्म का एक्सपोनेंट क्या है, आई एम जस्ट राइटिंग द एक्सपोनेंट, है ना। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, 4x³ का एक्सपोनेंट क्या है, 3, इस वाले टर्म का एक्सपोनेंट क्या है, 2, इस वाले टर्म का एक्सपोनेंट क्या है, 1, है ना। और इस वाले टर्म का एक्सपोनेंट क्या है, 0 होगा, राइट। देन अगर इस पूरे पॉलिनोमियल को आप देखोगे ना, देन हाईएस्ट एक्सपोनेंट, राइट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट
अब जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा ना, हाईएस्ट एक्सपोनेंट विल बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। तो इसे यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा है, 3, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा, 3। क्लियर है? ओके, सो अगेन अब इस डिग्री के बेसिस पे हमने बताया, डिस्कस अगेन इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे अगर डिग्री 1 हो सकता है, डिग्री ना हो 0 लाइक कांस्टेंट, सो फर्स्ट हो सकता है कांस्टेंट। कांस्टेंट के केस में क्या होगा, डिग्री यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, लाइक 5, क्योंकि 5 एक्स रेज्ड टू द पावर 0, तो यहाँ पे क्या है, डिग्री 0 है ना। इस केस में क्या है, डिग्री 0। तो अगर डिग्री 0 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, राइट। एंड अगर डिग्री 1 हो जाए, अगर डिग्री 1 हो जाए लाइक 3x + 5, है ना, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 1। अगर डिग्री 1 हो जाए सो इट विल बी नोन एज लीनियर। अगर डिग्री 1 होगा तो क्या होगा, लीनियर होगा। नाउ अब क्या होगा जब डिग्री 3 हो जाए, सो डिग्री 2 हो जाए। अगर डिग्री 2 हो जाएगा देन पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल भी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लाइक 2x² + 3x। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना, जहां पे डिग्री 2 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर डिग्री 3 हो जाए, देन अगर डिग्री 3 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, डिग्री 3 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, सो डिग्री 3 मीन्स इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ओके। एंड अगेन लेट मी राइट दिस, अगर डिग्री 4 होगा सो इट इज अगेन बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री 4 होगा तो क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक, और इसको ऑल्सो यू कैन ऑल्सो से लाइक क्वार्टिक पॉलिनोमियल, क्वार्टिक पॉलिनोमियल, है ना, अगर डिग्री 4 हुआ तो, ठीक है। ओके, अगेन अगर डिग्री 5 हो जाए सो दिस इज बेसिकली नोन एज क्विंटिक पॉलिनोमियल, राइट, है ना। तो डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगेन लेट मी हैव वन एग्जांपल। अगर मान लो आपको दिया हुआ है x⁻100 + 3, सो यहाँ पे डिग्री क्या होगा, डिग्री कितना हो गया, डिग्री इज 100, राइट। डिग्री क्या हो गया, 100 हो गया। और पूछा जाए नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, सो 2 हो गया, यानी 2 का मतलब बाइनोमियल। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100। ऐसे भी एग्जाम क्वेश्चंस आपको बुक में, टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, ठीक है, राइट। समझ में आ गया। लेट्स हैव वन क्वेश्चन। सो यस, आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 100 हो, डिग्री 100 हो, एंड इट शुड बी अ ट्राइनोमियल, राइट। डिग्री 100 एंड इट शुड बी अ ट्राइनोमियल। कैसे लिखोगे आप, यस, डिग्री 100 एंड ट्राइनोमियल होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। डिग्री 3 का मतलब हम क्या जानते हैं, डिग्री 100 का मतलब x⁻100। जरूरी नहीं आप एक ही वेरिएबल लोगे, यू कैन टेक एनी वेरिएबल लाइक y z एनीथिंग। सो x⁻100 ट्राइनोमियल होना चाहिए। अपने मन से कुछ भी टर्म्स लिख देते हैं, 3x + 5। सो दिस इज बेसिकली, हमें ध्यान देना है कि डिग्री 100 होना चाहिए और ट्राइनोमियल यानी 3 डिफरेंट टर्म्स होना चाहिए। तो डिग्री यहाँ पे 100 है और 3 टर्म्स हैं, सो इट इज अ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्लियर है? ओके, ग्रेट। नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। सो हमने क्या क्या समझ लिया, एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद डिग्री और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल का टाइप क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत ही सिंपल चीज है। पॉलिनोमियल को जनरली ना, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको डिनोट करते हैं p ऑफ x से, राइट। इसको क्या बोलेंगे, p ऑफ x, राइट। p ऑफ x का मतलब क्या हुआ कि जो इधर
टर्म दिया होगा ना वो x वेरिएबल के टर्म में होगा, लाइक 3x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 1। तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल इन x, राइट। अब वैल्यू क्या होता है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर हम मान लो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो p ऑफ 1 निकालते हैं। तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 और x जहां जहां पे वहां पे 1 रख देंगे। तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 एंड प्लस, इसको सिंप्लीफाई करें। सो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5 एंड प्लस 1, यानी क्या हो गया? 3 प्लस 5 इज 8 प्लस 1 इज 9। इसका मतलब क्या हुआ कि p ऑफ 1 क्या आ गया? 9। यही तो हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी x इज इक्वल टू 1 रखने पे हमारे वैल्यू क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, राइट। सिंपल। अगर मान लो p ऑफ -1 फाइंड आउट करना चाहते हो, p ऑफ -1, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। सो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, यानी x के जगह पे -1 रखना है। सो 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 एंड प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, सो ये तो 3 रह जाएगा। 5 इंटू -1, सो -5 एंड प्लस 1, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा? -1, यानी p ऑफ -1 क्या आ गया? -4। सो ये हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर है ना? अब नेक्स्ट चीज आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है ना? अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? सेम चीज, अगर मान लो हमारे पास px है, राइट, px से कोई पॉलिनोमियल गिवन है। नाउ यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे इसको? कैसे डिफाइन करेंगे? तो वी कैन से हियर कि वैल्यू ऑफ, या वी कैन से कि ऑल वैल्यू ऑफ x फॉर विच, all value of x for which value of px become 0, यानी x का वो सारा वैल्यू जिसके लिए px का वैल्यू 0 आ जाए। एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारे पास x इज इक्वल टू a है, राइट, x इज इक्वल टू a, अगर p ऑफ a निकालने के बाद 0 आ जा रहा है, x इज इक्वल टू a है और p ऑफ a 0 आ जा रहा है, इसका मतलब क्या कहेंगे कि x इज इक्वल टू a इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। क्लियर है? अगर x इज इक्वल टू a रखने पे pa 0 आ जाए तो क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू a इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर इसको अच्छे से लिखे ना कुछ इस तरह से, अगर मान लो x इज इक्वल टू a लेते हैं, ठीक है, और अगर pa 0 आ जाता है, तब हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू a क्या होगा? इसका 0 होगा। अगर pa का वैल्यू 0 है तो हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू a क्या होगा? पॉलिनोमियल का 0 होगा। क्लियर है? इसको अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लो हमारे पास px गिवन है 3x माइनस 5, है ना? अब हमें इसका 0 फाइंड आउट करना है। इसका 0 फाइंड आउट करना है तो हमें वैल्यू ऑफ x चाहिए जिसके लिए px का वैल्यू 0 हो जाए। तो हमें कभी भी 0 फाइंड आउट करना है तो जो भी px गिवन है ना, इसको क्या करेंगे? 0 से इक्वेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 5 एंड यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3, यानी x इज इक्वल टू 5/3 क्या हो जाएगा? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, है ना? यानी जिस वैल्यू के लिए x के जिस वैल्यू के लिए पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए उसी को बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? ठीक है ना? ओके, सो नाउ अगेन लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। अगर हमारे पास px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 12 है। अब यहाँ पे देखते हैं p-3 फाइंड आउट करते हैं क्या होता है। अगर p-3 फाइंड आउट करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 एंड प्लस 12, राइट। -3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा -21 एंड प्लस 12, 12 प्लस 9 21 -21, इसका मतलब क्या हो गया? 0 आ गया। p ऑफ -3 0 आने का मतलब ये है
कि -3 क्या हो गया, -3 इज 1 0 ऑफ px, ठीक है ना। -3 क्या है, -3 इज 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल px, राइट। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे अगर बात करें डिग्री का, है ना, डिग्री एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना एक बात, कि जितना भी नंबर ऑफ जीरो होगा ना, नंबर ऑफ जीरोस will always be less than equal to degree of polynomial, है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी अगर 2 डिग्री का अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री अगर 2 है, तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। 2 हो सकता है, उससे कम हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगा। तो ऑलवेज आपको ये चीज ध्यान रखना है। प्रीवियस एग्जांपल में हमने कहा px इज इक्वल टू दिस, सो इसका जीरो फाइंड आउट करना है ना, वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे -3 हमने पता किया कि -3 रखने पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब -3 एक जीरो इसका है, क्योंकि इसका डिग्री 2 है, तो हो सकता है एक और जीरो होगा, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में फाइंड आउट करेंगे। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि जीरो क्या होता है। ओके, सो ये तो हमने पढ़ लिया अल्जेब्रिकली, है ना। ग्राफिकल क्या अप्रोच होता है, ग्राफिकल या फिर हम बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, अगेन बहुत ही सिंपल है, कैसे समझेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट ध्यान देना है ना, कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कहां पे टच कर रहा है या कट कर रहा है, राइट। सो पॉइंट्स वेयर ग्राफ ऑफ px कट्स और टचेस द एक्स एक्सिस, है ना। px का ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है, वही पॉइंट हो जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। बहुत सिंपल एग्जांपल, अगर मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कोई एक ग्राफ है, ये यहाँ पे कट कर रहा है, मान लो एक्स इज इक्वल टू ए पे कट कर रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा इसका जीरो। क्लियर है, बहुत ही सिंपल, है ना। सो अगेन कुछ चीजें डिस्कस करनी है, जैसे मान लो लीनियर है, लीनियर इसका मतलब क्या हो गया, इसका डिग्री 1 होगा। अगर डिग्री 1 होगा ना, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे कि आपने देख लिया स्ट्रेट लाइन, है ना, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, लाइक 3x, कुछ भी हो सकता है, 3x + 5 इज इक्वल टू 0, कोई भी होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। सो अगर डिग्री 1 होगा तो क्या होगा, लीनियर होगा, और वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना। और अगर डिग्री 2 होगा, तो ग्राफ ना बेसिकली ग्राफ या तो ऐसा हो सकता है, राइट, या फिर ग्राफ ऐसा हो सकता है, या फिर ग्राफ ऐसा हो सकता है, या फिर ग्राफ ऐसा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ना जनरली पैराबोलिक, पैराबोला, दिस इज पैराबोला, ये वाला जो शेप होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। सो ये हो गया एक्स डैश, वाई डैश, वाई डैश, एक्स डैश, यहाँ पे भी एक्स डैश, वाई डैश, एक्स डैश, एंड यहाँ पे वाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिस्कस करना है, डिग्री 2 है ना, तो डिग्री 2 है, तो इसमें देखो आप एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है ना। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इसका 0 हो गया, इस केस में ये पॉइंट और ये पॉइंट इसका 0 हो गया, इस केस में टच ही नहीं कर रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, टच ही नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं है इसमें, इसमें भी टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को या कट नहीं कर रहा है, सो नो जीरो।
ठीक है ना। सो हमने क्या पढ़ा कि जीरो क्या है, जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा, है ना। अब नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर ग्राफ कट्स और टचेस द एक्स एक्सिस, यानी कितने बार कट कर रहा है। यहाँ पे देखो 2 बार कट कर रहा है ना, सो यहाँ पे क्या हो गया, 2 जीरो हो गया, है ना। एक ऐसा भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकता है ना, लेट मी डिस्कस। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक बार केवल की टच करे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे टच करता हुआ चलेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। जीरो यहाँ पे नंबर ऑफ क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि एक ही बार केवल टच कर रहे हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि एक ही बार टच करे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये था डिग्री 2, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला, ठीक है ना। ये चीज हमने पता है कि जो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन होता है, लेट मी डिस्कस। सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी तो पॉलिनोमियल की बात करें तो ये हो गया पॉलिनोमियल, है ना। तो इसका ग्राफ अभी आपने देखा ना कि ये ग्राफ कुछ ऐसा था, तो ये ग्राफ ऐसा होगा जब a ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, यानी इसका ओपन ऊपर की तरफ है। अगर a लेस देन 0 होगा ना, a लेस देन 0 होगा, तो ये नीचे की तरफ ओपन होगा, ठीक है ना। इसको डिटेल हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ में अच्छे से, बट ये अभी समझ लो आप, ठीक है। ये हो गया किसके लिए, ये हो गया जब डिग्री 2 हो तब। अब जब डिग्री 3 हो तो, यानी क्या हो सकता है कि ग्राफ जो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 3 टाइम्स कट कर सकता है। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, आप देखो 1 2 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है ना। 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरो 3 हो गया। और ये पॉइंट जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, मान लो कि ये -5 है, -2 है और ये 3 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, -5 2 एंड 3 इसका 0 हो गया। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो यस, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, और जीरो और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो यस, देन बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।